Next message we will see. In that procedure, we have seen the successful situations when you send the RC connection request and the response was the setup. Then again, you will move to the containment and they send the setup complete message. In that call flow, if you have seen there is a message RRC connection reject. E node B was sending to the UE. E node B RRC was sending to the UE RRC. Either RRC connection setup or reject. So first message was the RRC connection request message, and to the response of that RRC connection request, eNode we can send any of this message, either setup or reject. If eNode we will send the setup, then third message will be setup complete. The procedure has completed. But suppose if eNode B does not have the enough resource what UE has requested, then eNode B RRC cannot send the RRC connection setup message. Why? Because eNode B has rejected your resource request due to the might be some congestion, some problem might be there, radio link failure is there. So whatever reason, but for that eNode B RRC send the RRC connection reject message if eNode B does not have the resource what UE has requested. If eNode B has resource, then they will send the setup message and UE will respond with the setup complete. But now considering that setup complete already we discussed, now we are seeing this message. What is the meaning of RRC connection reject? So if eNode is not having the requested resource to establish RRC connection, and then RRC will respond with RRC connection reject message after receiving RRC connection request. So now we'll see what are the parameters will be in the RRC connection reject message. So in the RRC connection reject message, actually the same procedures you will see in the 3G also. In 3G also there is RRC connection request, RRC connection setup complete to move from idle mode to continued mode. In EMTS, same set of message, but
parameter wise different. There is different in 3G and different parameter in 4G. So in 4G, means in LT, RRC connection reject message is having the element reject cause. But in 3G, it was having the this RRC connection reject message was having the two parameters, reject cause as well as the your wait time. Sorry, I just one second, let me repeat 1 second. In 3G, RRC connection reject message was having these two parameter, reject cause, which will tell the reason why network has rejected the RRC connection, and the wait time. These two parameters was there in 3G, both parameters. But in 4G, there will be only one parameter, only wait time. There is no reject cause parameter in LT. It was only used in EMTS, means when you move from the 4G to 3G, in 3G RRC procedures, this reject cause may be used. So in 3G, the reject cause was having two value, congestion, and second value is given the specifications, that is the unspecified. These two values given for the reject cause means which will tell the reason why network has rejected the RRC connection. So congestion means you can understand it is overloaded, and the unspecified means any other reasons to reject. All that reason will come under the category of unspecified. Suppose, for example, some network maintenance issues going on. For that network has rejected your RRC connection. So they will not tell you network maintenance is going on. That category will come under the unspecified. Suppose radio link get failed, that category will come under the unspecified. So other than the congestion, all the reason to reject the RRC connection is coming under the unspecified categories. Wait time is the only parameter that is available in 4G. Means it will tell you how long we should wait before retransmitting the RRC connection request message. Because reject does not mean that okay, now this procedure get failed. We will again retransmit, but after how much time? So that wait time will define after how much time we will again reattempt to retransmit the RRC connection request message. Wait time will define how long we should wait before retransmitting RRC connection request message. And their wait time value can be anything from 1 to 60 seconds. Whatever the value will be used, that much time you will wait if RRC reject message is transmitted, and then with the response of that we will again retransmit the RRC connection. This is the parameter of the RRC connection reject. Clear है Abdullah? हाँ सर। धर्मेंद्र, किसी को डाउट है तो पूछो। सर ये इनोडी पैरामीटर है ना, ये वेट टाइम? क्या? ये वेट टाइम इनोडी पैरामीटर है ना? नो, सब यूई पैरामीटर्स। रिजेक्ट मैसेज तुम्हारा ई नोड भी से आ रहा है, लेकिन सारे वैल्यू तुम्हारा यूई साइड में भी सेट रहेगा।
भेजेगा तुम्हारा इन नहीं, यूई इन्होंने मैसेज, एक पैरामीटर बट रहता है वेट टाइम, इसलिए रहेगा यूई साइड में। वो जो सारे पैरामीटर तुम्हारा मैसेज यूई में इंप्लीमेंटेड है। ई नोड भी भेजेगा, ई नोड भी साइड में इंप्लीमेंटेड रहेगा। और ये यूई से ई नोड भी कम्युनिकेशन हो रहा है ना, बट यूई को भी टाइम पता रहना चाहिए, तभी तो यूई वेट करेगा ना। और यूई को फिर से आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट रीट्रांसमिट करनी है, तो कितना देर वेट करना है, तो उसका वैल्यू जो है ई नोड भी इस रेंज में से इस रेंज में कोई वैल्यू भेजेगा, जो भी वैल्यू भेजेगा ई नोड भी, ठीक है। तो तुम्हारा ई नोड भी साइड में भी ये वैल्यू सेट रहेगा, और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग तुम्हारा यूई उतना देर वेट करके फिर से आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज करेगा। क्लियर है? सर ये किसी पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए अप्लाई होता है या? नहीं, तुम्हारा नेटवर्क जो है उसका तो कितना लोड है उसके अकॉर्डिंग वो भेजेगा। जैसे सपोज को लोड काफ़ी ज़्यादा रहा तो वेट टाइम की वैल्यू थोड़ा ज़्यादा देगा, यदि लोड काफ़ी कम है तो वेट टाइम की वैल्यू वो कम देगा। तो डिपेंड्स अपॉन उस पर ऊपर लोड कितना है, उसको वेट टाइम सेट होगा। मगर कौन सा सर्विस नहीं मिला वो नहीं पता चलेगा हमें? वो ऐसा नहीं करेगा। सर्विस के बेस पर तुम्हारा रिसोर्स रिजेक्ट नहीं होता है, ओके। क्योंकि होता है कि कभी तुम्हारा वही पर्टिकुलर सर्विस के लिए रिसोर्स तुम्हारे पास अवेलेबल है, तो उस टाइम रिजेक्ट क्यों करेगा। और वो जो है अपन लोग एडवांस में गारंटी नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए किस टाइम पे रिसोर्स फ्री रहेगा, किस टाइम पे रिसोर्स फ्री नहीं रहेगा। अच्छा, ठीक है सर। तो ये तुम्हारा आरआरसी कनेक्शन एसोसिएशन का प्रोसीजर हो गया। इसमें एक टाइमर है, टाइमर T300, ये याद है। ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस, मतलब वो सिग्नलिंग से रिलेटेड नहीं है, बट इस टाइमर का यूज यहाँ पे आरआरसी कनेक्शन एसोसिएशन प्रोसीजर में, इसका यूज़ क्या है एक्चुअली। In the UE RRC, we have seen that first message UE has transmitted. RRC connection request message. Then you know the response with RRC connection setup or reject. So once you transmit the RRC connection request, how long your mobile has to wait for RRC connection setup or reject? सोचो देयर माइट बी सम प्रॉब्लम द इनोड साइड, और यूई को कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिला है, नाइदर आरआरसी कनेक्शन सेटअप और रिजेक्ट, तो क्या यूई वेट करता रह जाएगा? देयर मस्ट बी सम टाइमर विच विल टेल यू ओके आइदर वी गिव द रिजेक्ट मैसेज और सेटअप मैसेज वट एवर, बट विद इन दिस मच स्पेसिफाइड टाइम दिस रेस्पॉन्स हैज़ टू बी रिसीव्ड। That is used by use of the timer T300, which will define how long UE has to wait for RRC connection setup or reject message. एक बार UE ने RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज भेज दिया तो उसको कब तक, मतलब मैक्सिमम कब तक उसको वेट करना है आरआरसी कनेक्शन सेटअप मैसेज और रिजेक्ट मैसेज के लिए। विद इन द स्पेसिफाइड टाइम यदि यूई को सेटअप या रिजेक्ट कुछ भी मिल गया तो टाइमर को स्टॉप करना था। जैसे सपोज करो अभी मैं बोलूँ कि ठीक है हमें मूवी देखने चलना है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कैन वी गो एंड वॉच द मूवी, तो मैंने तुम्हें एक स्पेसिफाइड टाइमर स्टार्ट कर दिया, ठीक है मैं मैक्सिमम 5 मिनट वेट करूँगा, बट दिट इज मैक्सिमम टाइम। एक तुमने 1 मिनट में रेस्पॉन्स नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट में नहीं दिया, बट सपोज 3rd मिनट यू गिवन द रेस्पॉन्स, तो ओके सर विल गो। रेस्पॉन्स का मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ जाए, नेगेटिव भी आ गया तो रेस्पॉन्स तो हमें मिल गया ना,
कि okay sir I cannot do. I receive the response. So suppose third minute I receive the response, then why this timer will run? अब मुझे response मिल गया तो timer को stop कर देंगे, because now there is no use to wait for 5 minutes. यदि response नहीं मिला तो maximum मैं 5 minute वेट करूँगा. Once 5 minute expire कोई response ही नहीं आया तो then I should move for another action. मैं किसी और से पूछूंगा या तुमसे फिर से request करूँगा, that is different thing, but there should be some maximum defined time. So T300 will define that how long UE can wait RRC connection setup or reject message after transmitting the RRC connection request message. Let's define how long we can wait for RRC connection setup or reject message. Wait for RRC connection setup or reject message after transmitting RRC connection request message. तो टाइमर जैसे तुम्हें मैसेज भेजोगे यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा. Start T300 means you're transmitting RRC connection request, the timer start हो गया. Then once you receive the response within the specified time, इसकी टाइम की वैल्यू क्या होगा तो वो नेटवर्क के लिए ब्रॉडकास्ट इन SIB2 वैल्यू T300 will be broadcasted in SIB2. So जो भी टाइम है उतना देर UE वेट करेगा. Once the UE receive this RRC connection setup or reject, UE will stop the timer. Setup or reject, then UE will stop the timer T3. So ये तुम्हारा RRC कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का पिन हो गया. अब इस प्रोसीजर में किसी को डाउट है तो प्लीज आप पूछो. सर एक डाउट है, ये जो ऊपर जरा सा स्लाइड नहीं सर मैं तो बोल रहा हूँ हाँ सर. जरा, हाँ बस नहीं उतना नहीं, इसमें नीचे जो आपने ये लिखा ना, द वैल्यू ऑफ T300 विल बी ब्रॉडकास्टेड इन SRB2 SIB2. हाँ, तो ये जो टाइमर का वैल्यू है ये इनोड भी UE को बताएगा क्या? हाँ हाँ SIB2 में वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा तो उस सेल में कौन सी वैल्यू यूज करना है. तो जैसे ही मोबाइल, क्योंकि तुम्हारा SIB तो रीड कर लोगे, पावर 1 में प्रोसीजर में रीड कर लोगे तो मोबाइल को वैल्यू पता रहेगा. तो जैसे ही मोबाइल RRC कंसेंट रिक्वेस्ट भेजेगा, बिकॉज मोबाइल ही ये प्रोसीजर इनिशिएट करे ना RRC कंसेंट रिक्वेस्ट करें, तो जब मोबाइल RRC कंसेंट रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसी स्पेसिफाइड वैल्यू से वो T300 टाइमर अपना स्टार्ट हो जाएगा. ये वेरी कर सकता है सेल टू सेल या ऑपरेटर टू ऑपरेटर? ऑब्वियसली वेरी सेल टू सेल. क्लियर? यस सर. और कुछ नहीं? नेक्स्ट प्रोसीजर्स है RRC कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हम लोग कब यूज करेंगे, मिलता जब तुम्हें रिसोर्स चाहिए, जब मोबाइल को आइडल मोड से क्रिटिकल मोड में जाना है फॉर सम पर्टिकुलर सर्विसेज इन द एस्टेब्लिशमेंट कॉल वी डिस्कस.
So mobile will move from the RRC idle to RRC connected mode by establishing the RRC connection procedures. So in this RRC connection establishment procedure, who allocate the resource? It is the E node B. So only E node B can authorize to release the resource. When resource is not required, E node B is only authorized to release the resource. So how the resource can be released, how network will inform to the mobile. For that, the next functionality of RRC layer, or you can say the next procedure of RRC layer, it is the RRC connection release procedure. This is the second. सर अगर ये टाइमर खत्म हो गया मतलब तब तक भी रिस्पांस नहीं आया तो फिर क्या होगा? फिर सेल जैसे रीसेलेक्ट करके T300 नया सेल, फिर सेल रीसेलेक्ट करके न्यू सेल में RRC कनेक्शन कर लेगा, सेम सेल में तो नहीं, न्यू सेल में। अच्छा न्यू सेल में जाएगा। ओके। RRC connection release procedure. So this procedures means RRC connection release procedure will be initiated by the E node B RRC. So RRC procedure, but not UE RRC will initiate. These procedures will be initiated by the E node B RRC, and I tell the reason why E node B will initiate this procedure, because E node B only allocated the resource during the RRC connection establishment. You see in the setup message, E node B allocate the transmit the setup message. Within that message, E node B provide the configuration of the resource. So that's reason who allocate the resource, they only authorized to release the resource. So this procedure will be initiated by the E node B RRC. ये प्रोसेस बहुत ही ईजी है, because there is only one message in this call flow. तो रिलीज प्रोसीजर में सिर्फ एक ही मैसेज है, E node B will send RRC connection release message. That's all. There's no acknowledgement. But if you see the same procedure in 3G, तो 3G में इसका acknowledgement आता है। 3G there are two messages, RRC connection release, and उसका response होता था RRC connection release complete. In 3G, these two messages, but in 4G, only one message, RRC connection release. Why? Because as I said, in 4G, your mobile has to quickly move from idle to connected or connected to idle. It should not take the time. So, E node will not wait for the acknowledgement. Immediately, it will send RRC connection release message and release the resource. So, 4G, only one message. So now in RRC connection release, if you see what are the parameters is transmitting, what are the information elements. So within RRC connection release, it was transmitting first parameter, it is the release cause. The release cause we have redirection, load, balancing, PAU required, others.
This 3 cause means E node B is sending the RRC connection release. So why E node B is sending the RRC connection release? For that, within that message there is one informations element called the release cause that will tell the reason. So first cause is the redirection. What is the meaning of redirection? And that is sometimes called RRC connection release with redirection. पूछता है तो what is the meaning of RRC connection release with redirection? Means you can say when the RRC connection release message and their release cause, when the E node release cause within the RRC connection release message is having the value redirection, then we can say it's a RRC connection release with redirection. So now we have to understand which type this release cause will set with the value redirection. Scenario क्या है जब release cause का value redirection होगा? So actually now suppose understand this is a 4G network. Now suppose this is your mobile. You switch on, you register with the 4G network. Here 4G network is available, so you will register with the 4G network, means in MME you will register. Suppose this network is not supporting VoLTE. I'm assuming that this network is not supporting VoLTE, मतलब यहाँ पे IMS सर्विस नहीं है. Now understand सिनेरियो कि तुम्हारे मोबाइल को वॉइस कॉल करना है या वॉइस कॉल आ रहा है, जो भी मतलब वॉइस सर्विस को यूज करना है, तो VoLTE नहीं है तो वॉइस सर्विस के लिए क्या यूज करेगा मोबाइल यहाँ पे? It will use the 3G network, the CSMA. So if there is no VoLTE, so for voice call your mobile will use network, because LTE में तो कोई voice का element होता ही नहीं है. LTE is not supporting your voice service. For voice you have the option number 1. Either mobile can use the existing 3G or 2G network. Option number 2, you can use the IMS network. So VoLTE नहीं है मतलब IMS नहीं है, तो करना क्या है, आप 3G जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसको यूज करके आप वॉइस सर्विस यूज कर सकते हो. सो इफ यू आर यूजिंग द 3G और 2G नेटवर्क फॉर वॉइस सर्विसेज, दिस इज कॉल्ड CSFB, Circuit Switch Fallback. Means for CS services you are falling back to the earlier legacy, means earlier network 2G or 3G or connecting circuit switch fallback. So now, so for this, what एक understand, suppose right now you're in the 4G network, but अभी हमें वॉइस सर्विस ले जाना है 3G नेटवर्क में. तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मोबाइल एट ए टाइम 4G और 3G दोनों यूज करें. वो जैसे कॉल द मल्टी रैक. तो LTE डज नॉट सपोर्ट द मल्टी रैक टेक्नोलॉजी. आप एक साथ में एक ही रैक में रह सकते हो, या तो 4G में रहो या फिर 3G में रहो. तो CS सर्विस की हायर प्रायोरिटी होती है, वॉइस कॉल की हायर प्रायोरिटी है. तो मोबाइल को वॉइस सर्विस तो यूज़ करना ही करना है. तो वॉइस सर्विस में इस मोबाइल को क्या करना पड़ेगा, ये 4G छोड़ करके 3G में चला जाएगा. ये किसी 3G नेटवर्क से लाइट होगा. तो जिस टाइम 3G नेटवर्क जाएगा उस टाइम इसको 4G का कनेक्शन को रिलीज करना पड़ेगा. तो कैसे करना पड़ेगा, ई नोड भी उसके लिए मैसेज भेजेगा इसको RRC कनेक्शन रिलीज मैसेज भेजेगा और विथ कॉज
रीडायरेक्शन। तो मोबाइल क्या है, रीडायरेक्ट करेगा 3G या 2G नेटवर्क पे, और करंट जो तुम्हारा 4G का कनेक्शन था वो रिलीज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द RRC कनेक्शन रिलीज विथ रीडायरेक्शन। क्लियर है? किसी को भी डाउट है तो प्लीज आप कर लीजिए। सो अब जब रीडायरेक्शन होगा 4G या 3G में, तो किस टेक्नोलॉजी को तुम्हें रिडायरेक्ट करना है, 3G या 4G में, तो उसका फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा कि किस कैरियर फ्रीक्वेंसी पे जाना है। अब 4G से 3G पे जाओगे तो 3G का भी सिस्टम इंफॉर्मेशन रीड करना पड़ेगा ना, तो उसके सिस्टम इंफॉर्मेशन भी इसमें ट्रांसमिट होगा। सो RRC कनेक्शन रीजन बस यही एक मैसेज रहेगा। MME लोड बैलेंसिंग TA रिक्वायर्ड। सपोज जो किसी ट्रैकिंग एरिया पे काफ़ी सारा लोड बढ़ गया है, तो तुम्हारा UE को उस ट्रैकिंग एरिया से मूव करना है, यदि काफ़ी ज़्यादा लोड इस पर बढ़ गए हैं। अब UE को इससे कम्युनिकेट, MME पे लोड इंक्रीज हो रहा है, सो MME will give the instruction to reselect the new tracking area। तो अगेन जब न्यू ट्रैकिंग एरिया को सेलेक्ट करेगो, मीन्स करंट ई नोड बी से कनेक्शन सोर्स के दूसरे ई नोड बी से कम्युनिकेट करना है, तो ये तो RRC कनेक्शन चलिए छोड़ोगे, बिकॉज UE तुम्हारा एक साथ मल्टीपल ई नोड बी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। तो जो करंट ई नोड बी से कम्युनिकेट कर रहे थे वो कनेक्शन रिसोर्स रिलीज होना चाहिए, तो उसके लिए ई नोड बी भेज देगा RRC कनेक्शन रिलीज मैसेज। RRC कनेक्शन रिलीज मैसेज भेजेगा विथ कॉज MME लोड बैलेंसिंग TA रिक्वायर्ड। फिर UE जो है करंट ट्रैकिंग एरिया का रिसोर्स छोड़ के न्यू ट्रैकिंग एरिया को रिसेलेक्ट करेगा। इसके अलावा और भी कोई रीजन नहीं, सपोज तुम्हारा अभी कॉल कंप्लीट हो गया, मोबाइल डेटा को तुमने ऑफ कर दिया, तो सब अभी मोबाइल डेटा ऑन था तो तुम्हारा RRC कनेक्शन मोड में था, अभी वो रिलीज हो जाएगा। कॉल कर रहे थे, कॉल कंप्लीट हो गया, तुमने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। सो कोई भी सिनारियो हो, सब सिनारियो में तुम्हारा रिसोर्स तो रिलीज होगा, और सारे सिनारियोज जो चले आएंगे अदर्स वाले कैटेगरी में। उसके लिए स्पेसिफाइड नहीं कि हाँ चलो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया या रेडियो रिसोर्स रिलीज कर दिया। एनी सिचुएशंस अदर देन दिस विल कम अंडर द कॉज अदर्स रिलीज कॉज। अभी जैसे मैंने बताया था कि तुम्हारा ऑपरेशन मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, RRC कनेक्शन रिलीज हो गया, वो भी तुम्हारा कॉज अदर्स में चला है। सो ये सेकेंड प्रोसेस तो बहुत ईजीएस्ट है। दिस इज द एंड ऑफ सेकेंड प्रोसेस, RRC कनेक्शन रिलीज प्रोसेस। धर्मेंद्र को डाउट है? सिंपल इसका पर्पस याद रखना, रिलीज का मतलब सिंपल जो रिसोर्स तुम्हें एलोकेट हुआ था वो रिसोर्स रिलीज होगा। तो रिलीज हो क्यों रहा है तो उसका कॉज भेजेगा नेटवर्क कि क्यों रिलीज कर रहा है, बिकॉज नेटवर्क ही RRC कनेक्शन रिलीज प्रोसेस इनिशिएट करेगा, तो नेटवर्क उसमें पैरामीटर्स भेजेंगे इन्फॉर्मेशन यूनिट कि व्हाट इज द रीजन फॉर द रिलीज कॉज। सर जी, सर जितने भी एबनॉर्मल रिलीज है वो सारे अदर्स में आएंगे या फिर? अदर्स में, ओके सब अदर्स में आएंगे। ओके, तो रीजन सिर्फ नॉर्मल रिलीज के लिए आएगा? नॉर्मल रिलीज, इसके अलावा इवन नॉर्मल रिलीज में भी, अब नॉर्मल छोड़ो नहीं, नॉर्मल रिलीज के बहुत सारे कॉल जो तुम्हारा अदर्स में चलाएगा। मैं बता ना, जैसे तुमने कॉल कर रहे हो तो भी तुम्हारा मोबाइल आइडल मोड में था, हमें कॉल करना है, तो मोबाइल क्या हुआ, कनेक्टेड मोड में मूव कर गया। करेक्ट दीपक? यस। तो कनेक्टेड मोड में क्या, तो RRC कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हो गया। अब हमारा कॉल कंप्लीट हो गया, हमने कॉल को डिसकनेक्ट कर दिया, तो रिसोर्स रिलीज होगा ना। राइट। तो उसके लिए भी कोई कॉज नेटवर्क भेजता नहीं है कि रेडियो रिसोर्स रिलीज, और मैसेज भेजेगा RRC कनेक्शन रिलीज कॉज अदर्स। ओके। तो मतलब जो भी रेडियो पीरियड तुम्हें मिला था कॉल के लिए, वो रेडियो पीरियड रिलीज हो गया, उसमें कॉल में अदर्स में चलाएगा। तो एबनॉर्मल नहीं, बहुत सारे नॉर्मल सिचुएशंस भी होंगे जो तुम्हारे कॉज अदर्स में ही चले आएंगे। ठीक है सर। और किसी को
सर ये रीडायरेक्शन और रीसिलेक्शन में कुछ डिफरेंस क्या होता है, मतलब मेरे को सेल रीसिलेक्शन तो अपना फोर्जिंग भी कर सकते हो ना। तो तुम्हारे फोर्जिंग भी एक सेल को छोड़ के तुम दूसरे सेल को रिसिलेक्ट कर रहे हो, तुम्हारा 4G में ही हो। अभी एक सेल से, ये तुम्हारा 4G का एक सेल है, मूव करते करते 4G के दूसरे सेल में पहुंच गए, बट आइडल मोड में, कनेक्टेड मोड में उसको हैंड ओवर बोलते हैं। यहाँ से हम मूव कर गए तो 4G का न्यू सेल रिसेलेक्ट हुआ है, दैट इज कॉल्ड द सेल रिसेलेक्शन। बट यहाँ हम सेल रिसेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम करेंटली मेरा राइट ही मूव हो जा रहा है, 4G से हम 3G मूव हो गए, दिस इज आई राइट। ओके सर, ओके समझा। सेल रिसेलेक्ट मतलब सेम टेक्नोलॉजी में तुम्हारा। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं रीडायरेक्शन, मतलब तुम रीडायरेक्ट कर रहे हो दूसरे टेक्नोलॉजी से, उसकी करेंट फ्रीक्वेंसी भी दी जाती है कि किस टेक्नोलॉजी को हम रीडायरेक्ट होंगे। ओके सर। क्लियर राहुल? हाँ सर, क्लियर है। और किसी को? धर्मेंद्र? नहीं सर। So now the third functionality of RRC layer means a third procedure, which is the RRC connection re-establishment procedure. फर्स्ट वाला एस्टेब्लिशमेंट था, सेकेंड इज द री एस्टेब्लिशमेंट। मतलब यहाँ भी आरआरसी कनेक्शन को एस्टेब्लिश करेंगे, जो आरआरसी कनेक्शन इन केस लॉस हो गया तो पर्पस तो एस्टेब्लिशमेंट ही है, लेकिन फिर से एस्टेब्लिश हो, इसको बोलते हैं री एस्टेब्लिशमेंट। तो तुम्हारा ऑलमोस्ट इसका जो वर्क है ना, वो फर्स्ट प्रोसेस से मिलता जुलता रहेगा। ये मैसेज कर रहा हूँ, आरआरसी कनेक्शन री एस्टेब्लिशमेंट, उसका रिस्पॉन्स जो है आरआरसी कनेक्शन री एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट, फर्स्ट मैसेज। वहाँ पता था आरआरसी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट, यहाँ पे आरआरसी कनेक्शन री एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट, जिसका रिस्पॉन्स आरआरसी कनेक्शन री एस्टेब्लिशमेंट या रिजेक्ट हो सकता है। देन थर्ड मैसेज, वहाँ पे आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट था, यहाँ पे आरआरसी कनेक्शन री एस्टेब्लिशमेंट कंप्लीट। सो एक्चुअली ये मेन प्रोसेस है। कॉज तो बहुत सारे हैं, कब कब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा वो सारे कॉज बताऊंगा, बट बॉटम लाइन ये समझना कि एक्चुअली आरआरसी कनेक्शन हमने जब पढ़ा था, आरआरसी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, तो उसका मेन पर्पस क्या था, SRv1 कॉन्फ़िगरेशन को सेट करना। आप याद करो, पहले SRv0 तो बाय डिफ़ॉल्ट में मिल रहा था, देन हम लोग सेटअप कंप्लीट से SRv1 कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाइड कर रहे थे। सपोज ड्यू टू सम रीजन यदि SRv1 कनेक्शन लॉस्ट हो गया, तो SRv1 कनेक्शन सस्पेंड हो गया। रीजन क्या क्या, मैं बताऊँगा क्या क्या रीजन हो सकते हैं जहाँ SRv1 कनेक्शन लॉस्ट हो गया। बट सपोज इफ ड्यू टू सम रीजन SRv1 कनेक्शन हैज लॉस्ट, बट अभी ई नोड बी के पास, प्लीज़ आप ध्यान से मेरी बात सुन लें, तो थोड़ा सा रीज़न क्या है इसका इनिशिएट करने का,
वो थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान समझो। ड्यू टू सम रीजन, रीजन क्या है मैं अभी बताऊंगा विद इन 5 मिनट्स, बट सपोज ड्यू वाट एवर द रीजन, ड्यू टू सम रीजन SRV1 connection has suspended what it has allocated during the RRC connection establishment। जो RRC connection establishment के टाइम में SRV1 कनेक्शन मिला था तो वो सस्पेंड हो गया। तो अब यूई RRC कनेक्शन री एस्टेब्लिशमेंट इनिशिएट करेगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि नेटवर्क में यूई का वो कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन स्टोर रहना चाहिए। यदि यूई का कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन ई नोड भी आरआरसी के पास नहीं है तो आरआरसी कनेक्शन री एस्टेब्लिशमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। तब मतलब तुम्हारा मोबाइल को एक ही ऑप्शन बचा है कि फिर से आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट से स्टार्ट करो, मतलब फिर से एस्टेब्लिशमेंट करो, नॉट री एस्टेब्लिशमेंट। ये पॉइंट समझा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इफ ड्यू टू सम रीजन योर यूई SRV1 connection has lost, but still E node B RRC is having the UE's valid context information, then UE can initiate the RRC connection re-establishment procedure। क्लियर है दीपक? हाँ सर। SRV1 connection has lost and still E node B is having is valid context information, then UE can initiate RRC connection re-establishment procedure। पर्पस क्या है? टू रिगेन दिस SRV1 connection, to regain this SRV1 configuration। Initiate RRC connection re-establishment procedure to regain SRV1 configuration। तो वो SRV1 कनेक्शन लॉस्ट क्यों रहा, जिसके कारण यूई RRC कनेक्शन री एस्टेब्लिशमेंट प्रोसीजर इनिशिएट कर रहा है? तो उसके लिए एक पैरामीटर होता है रिलीज कॉल। RRC connection re-establishment। So why UE will initiate the RRC connection re-establishment means SRV1 connection is lost, so Y is lost. So for that there is a parameter called re-establishment cause. If this parameter will define UE re-establishment क्यों कर रहा है, मतलब क्यों SRV1 connection suspend हुआ है। So for the release cause जो तुम्हारा फर्स्ट सिनारियो है वो हैंड ओवर फेल्स। यदि हैंड ओवर तुम्हारा फेल होता है तो आरआरसी कनेक्शन री एस्टेब्लिशमेंट फिर से हो सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा एक प्रोसीजर होता है आरआरसी कनेक्शन री कॉन्फ़िगरेशन।
मतलब तुम्हारा यदि रेडियो पीरियड को फिर से मॉडिफाइड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग सिर्फ जीमेल यूज कर रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग रिसोर्स मिला होगा, बट सडनली उसके साथ साथ हम अभी व्हाट्सएप, मूवी डाउनलोड, बहुत सारा चीज़ यूज़ करना शुरू कर दें, तो फिर मेरा जो अभी एग्जिस्टिंग पीरियड था वो मॉडिफाइड होगा। तो रेडियो पे रिकॉन्फ़िगरेशन के बहुत सारे रीजन हैं जो हम बताएंगे आपको जब हम पढ़ाएंगे रेडियो पे रिकॉन्फ़िगरेशन। तो यदि रेडियो आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन हो रहा है और वो आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन फेल हो गया तो भी तुम्हारा SRV1 कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा। तो फिर से यूई को आरआरसी कनेक्शन री एस्टेब्लिशमेंट भेजना पड़ता है। तो यदि तुम्हारा आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन फेल हो गया, फर्स्ट वजह यह है SRV1 कनेक्शन लॉस्ट होने का, सेकेंड वजह यह है, थर्ड जो सिनारियो है जब तुम्हारा SRV1 कनेक्शन लॉस्ट होता है वो सिनारियो क्या है कि मैं लास्ट क्लास में बता रहा था RLC का AM मोड, कि तुम्हें पैकेट नहीं मिला तो फिर से रीट्रांसमिट करोगे। तो मैक्सिमम कितना टाइम को रीट्रांसमिट करना है, जी कुछ पैकेट लॉस हो गए हैं AM मोड में, RLC AM मोड में, तो यूई को क्या करना है फिर से रीट्रांसमिट करेगा। सोचो फिर लॉस्ट हो गया, फिर रीट्रांसमिट करोगे। सो मैक्सिमम कितना टाइम रीट्रांसमिट करना है उसका वैल्यू RRC नॉट RLC, RRC डिफाइन करेगा कितना मैक्सिमम टाइम RLC AM मोड में रीट्रांसमिट करेगा। यदि सोचो मैक्सिमम रीट्रांसमिशन भी फेल हो गया तो मतलब कुछ इशू है, तो फिर तुम्हारा SRV1 कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फेल हो, SRV1 कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन लॉस्ट हो जाता है, RRC कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। तो फिर यूयू क्या करना है, फ्रेश RRC कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। यदि बोलोगे सर फिर फेल हो गया बार बार ट्रांसमिट करने के बाद तो यूई क्या करेगा, तो वो हम देखेंगे RLC लेने क्यों फेल हो गया, अभी फेल होने के बाद करना क्या है। बट फॉर टाइमिंग तो ये ध्यान रखना कि जो मैक्सिमम रीट्रांसमिशन है वो RRC लेयर डिफाइन करेगा, और ये तो मैक्सिमम रीट्रांसमिशन में फेल हो गए, बार बार हम भेज रहे हैं, बार बार हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है या फिर हमारा डेटा लॉस्ट हो जा रहा है, तो RRC कनेक्शन का SRV1 कॉन्फ़िगरेशन लॉस्ट होगा। सो इफ मैक्सिमम retransmission of RLC has reached, यदि वो पहुंच गए तो भी तुम्हारा जो है SRV1 कॉन्फ़िगरेशन लॉस्ट होगा, मोबाइल को RRC कनेक्शन री एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा। और एक जो कॉज है वो PDCP लेयर से रिलेटेड है, इसलिए ये मैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम आएगी PDCP लेयर में या RLC लेयर में, बट उसका प्रॉब्लम फिक्स होगा RRC कनेक्शन री एस्टेब्लिशमेंट से। सो जब हम आगे PDCP लेयर पढ़ेंगे तो तुम्हारा जो सिक्योरिटी रिलेटेड वर्क होता है वो PDCP लेयर परफॉर्म करेगा, जो साइफरिंग, इंटीग्रिटी, प्रोटेक्शन, वो तुम्हारा PDCP लेयर परफॉर्म करेगा। तो यदि यूई का तुम्हारा इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन फेल हो गया है, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन फेल हो गया, यानी यूई इंटीग्रिटी पर्सन काम किस लेयर का होता है, तो ये हम देखेंगे PDCP लेयर का काम है। सोचो ये फेल हो गया, तो फेल हो गया तो तुम्हारा SRV1 कॉन्फ़िगरेशन गया, फिर यूई चला जाएगा आर्डर मोड में गया, फिर इनिशिएट करो RRC कनेक्शन री एस्टेब्लिशमेंट। सो यदि ये सारे वजह हैं तो तुम्हारा यूई जो है RRC कनेक्शन री एस्टेब्लिशमेंट इनिशिएट करेगा। मुझे इंटरव्यू कहीं पूछा है तो मुझे सिनारियोज बताओ, कॉल फ्लो नहीं, सिनारियो बताओ, वाई यूई इनिशिएट RRC कनेक्शन री एस्टेब्लिशमेंट, भेजता क्यों नहीं, तो उसको ये सारे वजह बताने, ये सिचुएशन से दी होता है। तुम्हारा हैंड ओवर भी, क्योंकि ये सब थ्योरी नहीं है, तुम्हें टेस्टिंग में जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा भी हैंड ओवर फेल हो रहा है
तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट सिचुएशन कि हमें चेक करना पड़ेगा कि मोबाइल मेरा आरआरसी कनेक्शन री एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा तो मेरा मोबाइल का टेस्टिंग फेल है, क्योंकि ये तो इसका प्रोसीजर से यदि फेल हो रहा है तो हमारा आरआरसी कनेक्शन री एस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए। यदि पीटीसीपी की इंटीग्रिटी परसेंट फेल है तो आरआरसी कनेक्शन री एस्टेब्लिशमेंट करेगा। आरएलसी कनेक्शन री ट्रांसमिशन पहुँच गया है फिर भी जो है डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है तो आरआरसी कनेक्शन री एस्टेब्लिशमेंट करेगा। ये सब सिनारियोज है जो आपको टेस्ट करने होते हैं। क्लियर है? आरआरसी कनेक्शन री एस्टेब्लिशमेंट भेजेगा क्यों? राहुल मोहित? हाँ सर, क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भेज दिया तो उसके रेस्पॉन्स आएंगे। यहाँ पे तुम्हारा एक और पैरामीटर रहता है क्यूई आइडेंटिटी। जस्ट तुम्हारा आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट में क्या था? एस्टेब्लिशमेंट कॉज, तो यहाँ पे हो गया री एस्टेब्लिशमेंट कॉज। वहाँ पे भी थी यूई आइडेंटिटी, तो यहाँ पे एज ए यूई आइडेंटिटी जो वैल्यू यूज होगी तो जैसे CRNTI। रीज़न क्या है ना, हम मैक लेवल में पढ़ेंगे क्या था CRNTI। एक्चुअली तुम्हारा मोबाइल ऑलरेडी आरआरसी कनेक्शन एस्टेब्लिश कर चुका है क्योंकि री एस्टेब्लिशमेंट मतलब क्या है, पहले एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, वही फेल हुआ है किसी वजह से, वजह क्या आपने बताया, तो री एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। तो तुम्हारा मोबाइल का आरआरसी के साथ री एस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो एस्टेब्लिशमेंट के टाइम में क्या था ना, उसके पहले एक रैच प्रोसीजर मैक लेयर परफॉर्म हो, जो मैक लेयर पढ़ेंगे रैच प्रोसीजर्स। तो रैच के टाइम में ही ये CRNTI मोबाइल का एक यूई आइडेंटिटी जो तुम्हें सेल लेवल पे ना एक टेम्पोररी आइडेंटिटी मिलती है मोबाइल। यदि तुम्हारा मोबाइल एस्टेब्लिशमेंट कर चुका है तो उसके बाद एज ए यूई आइडेंटिटी मोबाइल CRNTI यूज करेगा, IMSI TMSI यहाँ यूज नहीं करेगा। बट मोबाइल विल यूज द CRNTI। ये भी एक मोबाइल आइडेंटिटी इज कॉल्ड द सेल रेडियो नेटवर्क टेम्पोररी आइडेंटिफायर। तो जब तुम्हारा आरआरसी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हो चुका होता है, मैंने जो फ्लो बताया था वो फ्लो याद करो। मैं कहता था पहले पावर ऑन होता है, फिर रैच होता है, फिर आरआरसी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होते हैं। तो तुम्हारा रैच और आरआरसी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ये दोनों कंप्लीट होने के बाद मोबाइल को CRNTI मिल जाती है। तो इसके बाद मोबाइल आरआरसी कनेक्शन री एस्टेब्लिशमेंट में एज ए यूई आइडेंटिटी CRNTI यूज करेगा। इस पैरामीटर की वैल्यू CRNTI होगी। क्लियर है? ये तुम्हारा फर्स्ट मैसेज का कहानी हो गया। रेस्ट ऑफ द मैसेज हम कल देखेंगे। धर्मेंद्र यहाँ तक कोई इशू है? हाँ सर, ये इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे वहां तक रैच का कोई काम नहीं होता है सर। जब खाली री एस्टेब्लिशमेंट आएगा तो ही ये CRNTI यूज, मतलब वहाँ पे रैच या CRNTI यूज होगा। नहीं, एक मिनट, तुम्हारे दो क्वेश्चन, दो डिफरेंट क्वेश्चन पूछ दिया। रैच तो तुम्हारा एस्टेब्लिशमेंट के पहले ही हो जाता है, लेकिन हमने रैच तो देखा नहीं ना सर अभी तक, तो आपने डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट एक मिनट, तुम धर्मेंद्र पता नहीं रिविजन करो या तो मेरी रिकॉर्डिंग नहीं सुन रहे हो। मैं कल भी क्या बोला था कि रैच जो है दैट इज अ मैक लेयर प्रोसीजर। जब हम मैक लेयर शुरू करेंगे ना तो उसमें रैच आ जाएगा। आपने तो अभी बोला कि रैच आ जाएगा। मेरा क्या है कि जैसे कि रैच जो है, आप बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जब एस्टेब्लिशमेंट होता है उसके पहले ही होता है ना? करेक्ट। हाँ तो वो हम मतलब बाद में पढ़ेंगे। हाँ, वो मैक लेयर का काम, वो आरआरसी का काम नहीं, वो मैक लेयर काम करता है। तो और एक चीज था ये हाँ, बोलो। मैं जो बोल रहा था कि सर ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, मेरा क्या सबका हमने डिस्कस भी किया था कि जो आप पढ़ाएंगे ना सर, जैसे आज कोई लेक्चर ले रहे हैं ना, तो आज कौन सा पोर्शन आप ले रहे हैं। जैसे आज हम ले रहे थे आरआरसी कनेक्शन रिस्टेब्लिशमेंट और रिलीज वाला, है ना? तो आप बता रहे हैं कि आज जो है आरआरसी कनेक्शन स्टेब्लिशमेंट और रिलीज का आज सिखाने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या है उसके ऊपर फोकस करके उसका रिवीजन भी कर लेंगे और हमें पता भी लगेगा कि ये टॉपिक आज हमने सीखा है। पर टॉपिक के अंदर आप सिखाएंगे और ये अगर बताएंगे नहीं कि ये पर्टिकुलर ये चीज है, तो हम उसमें थोड़ा रिवीजन करने में दिक्कत होती है। और अभी तक हमने
कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं, जैसे हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, उस सिलेबस में से कौन से मॉड्यूल है, मतलब मल्टीपल मॉड्यूल है उसके अंदर, तो अराउंड 16-17 कुछ ज्यादा ही है, तो वो उसमें से कौन से मॉड्यूल में हम क्या पढ़ रहे हैं, तो वो एक बार आप बता दिया करेंगे तो उसके हिसाब से हम उसको नोट कर लिया करेंगे। मतलब नेक्स्ट क्लास में तुम्हें क्या करना है वो बताना है कि नेक्स्ट क्लास में क्या करना है वो पहले बताना है, करेक्ट? कि कौन टॉपिक क्लास है? क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार बता दें कि आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, कि आज हमने जैसे कि रैज कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और रिलीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसको बता दें कि आज हम ये पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उसके हिसाब से आगे जो रिवीजन करेंगे ना, वो 2 टॉपिक को पकड़ के अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। मैं बता दूंगा, लेकिन करंट रिवीजन करने से ज़्यादा फायदा है कि नेक्स्ट वीडियो को तुम आगे का पढ़ोगे, मतलब वो तो मुझे बताना, मुझे कोई, मैं बता देता हूँ ना, कल तुम्हें जैसे मैं पढ़ाऊँगा आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन, और ये आरआरसी कनेक्शन जो बचा वो टॉपिक मैं कल करूँगा, ठीक है? अब मुझे सर ये आगे का बताओ कि एक सेकंड धर्मेंद्र, मैं मुझे क्या नेक्स्ट क्लास में क्या टॉपिक है मैं ये बता दिया करूँगा, कोई मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा वो समझ में इशू हो रही है कि करंट रिवीजन करोगे ना जो है धर्मेंद्र, तो नेक्स्ट समझने में ज़्यादा बेटर रहेगा कंपेयर टू तुम की नेक्स्ट समझने का ट्राई करो। नेक्स्ट बुक से पढ़ो, नेट से पढ़ो, समझ में नहीं आएगा जब तक कि क्लास नहीं सुनते हो, इतना भी कंफर्म रहो। प्रोटोकॉल में तुम्हें हर जगह जोड़ने, नेट में हर मैसेज का हर पैरामीटर्स मिल रहा होगा, फिर तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा और कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा, कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा। क्लास के मेरा बारे में नहीं एक्सपीरियंस सर, से मैं बोल रहा हूँ। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं सर, हाँ, जब आप क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप टॉपिक बता दिए तो अच्छा रहेगा, वो ये बोलने का मतलब है। जब जब आप क्लास स्टार्ट कर रहे हैं सर, आप हाँ हाँ, जब अभी आप जो क्लास टॉपिक जब बता देंगे स्टार्ट करें कौन तो सा टॉपिक कौन टॉपिक सा आज, स्टार्ट करेंगे वो बताने के लिए। हाँ वो ये बोलना चाह रहे हैं सर। नहीं नहीं, वो बोल रहा है एक क्लास पहले, जैसे कल क्या स्टार्ट करेंगे वो बता देने के लिए। नहीं नहीं, मैं वो आप क्लास स्टार्ट, जैसे आप 6 बज गया, क्लास में कॉल आई है, तो आप बोलेंगे सर कि आज हम लोग जो है ये 2 टॉपिक लेने वाले हैं, कौन से 2 ये क्या टॉपिक? बताया ना, मैं बताया क्या ना, पूरा तुम लोग के कॉन्सेप्ट ना क्लास बर्बाद हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं क्लास में। ये सब पता है इंटरनेशनल क्लास में चलता है, पता है क्या चलता है, जब बंदे हाँ क्या स्लाइड पढ़ा देना और उसको पता है कि मुझे आज के डेट में 50 स्लाइड खत्म कर निकल जाना है। मुझे बताओ, मैं जब पढ़ा रहा हूँ लोगों को रियल टाइम में कुछ डाउट, अभी हम सोच लें कि ये क्लास आधे घंटे का फॉर एग्जांपल, लेकिन लोगों को होता कुछ ज़्यादा डाउट आ जाए। अब हम बोल देंगे कि आज हम पेजिंग खत्म कर देंगे, और हो सकता है कि आरआरसी कनेक्शन में लोगों को प्रॉब्लम अभी आ रही है, हम पेजिंग तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। नहीं तो सर कोई बात नहीं, पेजिंग हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर, मतलब नेक्स्ट हाँ, तो क्लास में मुझे कंटिन्यू। ये बताओ ना धर्मेंद्र कि प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है, तुम्हारा सारा, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट मानो कि जो पढ़ा रहा हूँ ना उस पर फोकस। हम बताओ अभी आरआरसी कनेक्शन रिलीज जैसे स्टार्ट किए, तो क्या हम बताएंगे कि हम आरआरसी कनेक्शन रिलीज तो स्टार्ट कर रहे हैं? मुझे एक क्लास शुरू होने के पहले नाम बोल दूं और बाद में पढ़ाते हुए नाम बोलना, मुझे उसको डिफरेंस समझ में तो नहीं आ रहा है। नहीं मुझे ये सर क्या उस होता है, कब होता है, जब लोगों को बैठ करके स्लाइड बताना होता है ना कि चलो मेरा वो मैं हम लोग करते हैं जब कॉर्पोरेटिव में थे, मुझे पता था कि मुझे 2 दिन में ही खत्म करना है, चाहे लोगों को समझ में आए नहीं समझ में आए, मुझे कंपनी से चेक मिल जाता है और कंपनी को भी देता है टाइम कि मुझे 2 ही दिन में खत्म करना है, बंदा बाद में पढ़ेगा अपना। वैसे खत्म करना है तो बताओ, मैं भी पर डे टारगेट लेके चलूंगा, मुझे आज इतना खत्म कर देना है, मैं खत्म कर देता क्या हूँ। हो जाएगा सर, आप टॉपिक स्किप कर देंगे ना, उसके अंदर समझ में नहीं आएगा ना। तो मैं मुझे धर्मेंद्र, मुझे आप इतने ही लोग हैं, प्लीज सब लोग अनम्यूट हो जाओ, क्योंकि पर डे इसी चीज पे डिबेट करना मुझे नहीं सही लगता है। आप मुझे बताओ कि भी मैं क्लास स्टार्ट करके बता रहा हूँ आरआरसी कनेक्शन रीएस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, मैं नाम बता रहा हूँ, ये नाम को क्लास के जस्ट पहले बोलने में, अभी बोलने में क्या डिफरेंस होता है समझने में कॉन्सेप्ट का, वो तो मेरे दिमाग से बिल्कुल बाहर जा रहा है। अभी आप बताओ कि मैं आरआरसी कनेक्शन रिएस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट कर रहा, मैं टॉपिक का नाम दिया, आरआरसी कनेक्शन रिजेक्ट मैसेज स्टार्ट कर रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम दिया, क्यों स्टार्ट होता है रिजेक्ट, और उसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इस टाइम पे ही शुरू में बोलूं कि मैं आज आरआरसी कनेक्शन रिएस्टेब्लिशमेंट करूंगा, मैं आरआरसी कनेक्शन रिजेक्ट करूंगा, ये नाम पहले बोलने से और लास्ट में अभी जब पढ़ा रहा हूँ उस टाइम नाम बोलने से, अब्दुल्ला प्लीज आप ही मुझे बताइए कि उससे कॉन्सेप्ट समझने में क्या इशू होती है, वो प्लीज मुझे आप समझाने की थोड़ा ट्राई कीजिए, क्योंकि एक लड़के के कारण पूरे लोगों का क्लास खराब कर देना, ये मुझे पर डे सही नहीं लगता है। धर्मेंद्र, मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ कि आप पहले का रिवीजन तो करते नहीं हो।
सर प्रॉब्लम ये है कि हमने नहीं, ज्वाइन करने हम से लोग पहले का है तो आप सब लोग बोलो प्लीज। अपने एक मिनट, आप प्लीज सब लोग अनम्यूट हो जाओ, मुझे 2 मिनट, एक मिनट सबकी धर्मेंद्र, बात मोहित, दीपक, प्लीज आप लोग सब अनम्यूट हो जाओ। मुझे आप ये बताओ को क्लास समझने में इशू आ रही है किसी को? नहीं सर। ये नहीं, नहीं सर। सब लोग सटाम जो भी है लोग, प्लीज किसी को इशू था बताओ। सर आप जो सर नहीं प्रोसीजर बोल रहे थे वो सब सही है, बट आपका पढ़ने का तरीका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे क्या है धर्मेंद्र, क्योंकि मुझे वो नाम से पहले बोल दूं उससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में चला आएगा, वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। टॉपिक पढ़ाए वो ही नहीं पता ना सर। जैसे आपने सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस में हमने अभी तक क्या कवर किया और क्या नहीं कवर किया। नहीं कवर किया वो ठीक है, वो उसमें हम देख लेंगे। अभी इसमें जो भी दिए हुए हैं आप, या तो आप ये बता दीजिए कि ये पर्टिकुलर हम सिलेबस इतना कवर करने वाले हैं, या तो ये जो सिलेबस दिया है वो कोई काम का नहीं है ना। सर अगर आप पहले नाम बता देंगे तो एक बार पहले से हम लोग रिवाइज करके रखेंगे, वो इंटेंशन से बोल रहे थे कि अगर कल हम क्या करने वाले हैं तो आज अपने को पता रहेगा तो उसको हम रिवाइज कर लेंगे पहले क्या करना है नहीं करना है। इस इंटेंशन से बोल रहे हैं सर, और कुछ नहीं। मैं वही बोला ना कि मुझे नाम बताने में कोई इशू नहीं, मैं भी क्या बोला, लेकिन अभी फिर बाद में क्या होने, सिर्फ क्लास शुरू करने से मुझे वही कर, मैं मुझे क्लियर डाउट क्लियर करूँ। कभी बोल रहे हो कि नहीं सर आज क्लास शुरू करने से पहले बताना है, कभी बोल रहे हो क्लास शुरू करने के बाद में बताना है। नहीं सर, वो कल क्या पढ़ेंगे सर उसके बारे में अगर एक टॉपिक पता चल जाएगा सर तो 1 to 1 अभी अपन। कॉल करूंगा सर, अगर आपके पास में टाइम हो तो मैं थोड़ा 1 to 1 आपसे बात करना चाहता हूँ, है ना। मैं सभी लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो 1 to 1 मैं बात करना चाहता हूँ, है ना। हाँ तो आप मुझे मैं भी 1 to 1 ही बात करना चाहता हूँ धर्मेंद्र, क्योंकि मैं भी आपके कारण सबका टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ पर डे। मेरे पास उतना फ्री टाइम बैठा हुआ नहीं है। टाइम वेस्ट हो तो मेरा इंटेंशन वो नहीं, 1 हाँ to 1 ठीक है, बात। आप मुझे अभी आप मुझे मेरे मोबाइल पर आप कॉल कर लो। सर आपका नंबर एक्चुअली पता नहीं मुझे। आप ठीक है, हाँ नंबर लिख लो 6300। ठीक है, नंबर किसी और को इशू हो रही है अदर दिन धर्मेंद्र, और किसी को इशू हो तो प्लीज़ आप मुझे बोल दो, क्लियरली बोलो। नहीं सर ठीक है। नो सर कोई प्रॉब्लम क्योंकि नहीं। ये क्या है ना, ये प्रोफेशनल कोर्स है, प्लीज़ इसको आप लोग ना उस तरह का कोर्स से रिलेट मत करो कि अभी बोल दिए कि ये लाइन तो अभी आपको बताओ कहाँ आपके लिखे हुए कोर्स में लिखा हो कि आरआरसी का पैरामीटर बताना है। अब देखो कोर्स ना, कोर्स मैं भी देख चुका हूँ, आप कोर्स देख रहे हो, मैं भी कोर्स देख चुका हूँ। किसी कोर्स का जो है ना ये नहीं लिखा है कि आरआरसी में ये पैरामीटर बताएंगे, उसमें यूवी आइडेंटिटी बताएंगे, उसमें कॉज बताएंगे, और सारे लिखा था। चलो आरआरसी ले रहा, उसमें मैं जो है बेस्ट बता रहा हूँ। नहीं तो इसमें एक लड़का है जो ऑलरेडी क्लास में आता है और उससे पूछो कि यहाँ पे लोग हर महीने में 5 लड़के कब से इंटेल और क्वालकॉम में जाते हैं, यदि नहीं बताता तो लड़के जाते नहीं। तो मेरे लिए जो बेस्ट है वो मैं काम कर रहा हूँ। बाकी यदि आप लोग को मोटिफाइड करना सिलेबस आप मोटिफाइड करते जाओ, मुझे कोई इशू नहीं है। इसमें एक लड़का है जो पूछो कि उसे हाँ कि ऐसा सही है कि सर के ऑफिस से हर महीने में, और यहाँ जाते हैं लड़के कहाँ, क्वालकॉम इंटेल को मेरे लड़के के बारे में समझ में नहीं आया तो दूसरी बात है। आप प्रोफेशनल इंटरव्यू देना और ये जो कोर्स कर रहे हो वो समझना, दोनों में डिफरेंस होता है। आपको ये सारे चीज़ जो है वर्किंग के हिसाब से समझना है। लेकिन आप लोग इसमें कुछ ऐसे हैं कि नहीं बस मुझे वो क्या है ना, बस नाम बता दो, नाम तो ठीक है, नाम बता के कोर्स करते हैं हम लोग। लेकिन और किसी को भी इशू है तो प्लीज़ आप मुझे भी बताओ। आप जो है मुझे धर्मेंद्र आप कॉल कर लो, पर डे एक ही चीज़ डिस्कस करना, मेरा भी तो दिमाग खराब होगा। मेरा नंबर लिख लो धर्मेंद्र, मुझे प्लीज़ अभी आप कॉल कर लो। 6300 6300 586 586 204।